Hi guys, welcome to Connectra, a platform where we are uniting and uplifting all the businesses of the Jain community. We have a truly inspiring and a unique person here with us today. We are sitting down with Hiren, who with his wife Ria has taken a bold step into the world of entrepreneurship. Without any family background, they've built together a protein powder that is not only 100% organic but also made in India for India. So let's jump straight into the conversation and get to know a lot about his journey. Hi Hiren, how are you? Thank you for such a warm introduction for me. So it was really great. Like we started this brand a few months before, and I started it with my wife. So बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को इस ब्रांड से सीखने मिली है. नॉट जस्ट दिस ब्रांड, इससे पहले भी मेरा एक ब्रांड था विच आई स्टार्टेड. दिस इज माई सेकंड स्टार्टअप. तो इसके पहले मेरा एक और स्टार्टअप था जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला. दैट्स व्हाई आई गॉट अ वेरी गुड ग्रिप और यू कैन से एक्सपीरियंस इन दिस न्यू स्टार्टअप, जिसकी वजह से मुझे समझ आया कि क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए. इसके पहले वाला स्टार्टअप भी रिलेटेड टू? नो, इट वाज नॉट रिलेटेड टू कॉस्मेटिक. अरे इट वाज नॉट रिलेटेड टू सप्लीमेंट, इट वाज रिलेटेड टू कॉस्मेटिक्स. सो हम लोग मेंस कॉस्मेटिक में थे, जिसके अंदर हम लोग मेंस के पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दे रहे थे. वी वर फर्स्ट इन इंडिया who were thinking about men's personal hygiene. Yeah, because I've never heard of anything like that. Yes, so men's के personal hygiene के ऊपर हम लोग in 2018 we started that brand, and still that brand is working, but now that has been into the automation mode. तो अब हम लोगों ने सोचा कि कुछ नया करते हैं, तो we jumped into this protein sector. But कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, आप बड़े हुए तब कोई भी प्रोटीन पाउडर नहीं बना रहा था घर में? कोई नहीं. तो कैसे ये आइडिया आया to get into this field? So स्टार्टिंग से ही मैं खुद एक जिम फ्रीक हूँ, जिसके अंदर मेरे को ना दिन में मिनिमम 2 घंटे तो मेरे को जिम में चाहिए ही. मैं सुबह चला जाऊँगा या सुबह मैं एक अलग सा स्पोर्ट कर लेता हूँ, फिर शाम को मैं जिम कर लेता हूँ. तो कब से ऐसा हो रहा था कि यार कुछ ना कुछ मैं खुद इस इंडस्ट्री में कुछ करूँ, जिसके अंदर मैंने खुद ने yearly I have spent around 4 lakhs on just supplements, on my own growth. तो मैंने सोचा कि मैं अगर खुद इतना स्पेंड कर सकता हूँ, there's a big opportunity in this market जहाँ पे लोग स्पेंड कर सकते हैं. And after COVID I felt कि हाँ लोग ज़्यादा incline हो रहे हैं फिटनेस की तरफ. So I thought let's research about it. Starting में तो it was on just research basis कि research करते होता है कि नहीं होता. But when I researched I found out कि इसमें बहुत scope है. Then I started this brand. Because it took me 1 year just to research everything. 100%. कोई without any background, full scratch से आपने start किया? Yes. So your wife was also with you all along? Initially मैं अकेला कर रहा था, but अभी जैसे ही हम एक स्टेज पे पहुंचे जहाँ पे हम लोग का अभी रेगुलर गुड सेल्स आता है, सब आता है. I wanted a hand in my business. कि I have built a team of 25 people, but I need someone to manage them अगर मैं नहीं हूँ. So she is doing all the marketing part, all the content part, and even she is being the face of the brand. जैसे recent videos में we have done shoot with her only, कि जहाँ पे हम लोग एक ये भी बताना चाहते हैं प्रोटीन सिर्फ मैन के लिए नहीं है. It is for females also, because आज जितना फीमेल काम करती है उससे कम तो मैन करते हैं. मैन, if a man is a businessman or if he is working somewhere, he is going to sit at the place and only one activity is that's gym, if he is doing the gym or he is doing the running or walking. But women सुबह उठने से लेके रात, even if she is working, सुबह उठने से लेके दोपहर में काम करने से लेके, because एक मेरी खुद की टीम में there is more than 10-12 females. Boys is हम लोग इधर बैठे हैं, हम लोग लैपटॉप पे काम करेंगे. Females are roaming around. हाँ नहीं ये भी बाकी they move around more than men. That's why females को भी ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, ज़्यादा ही अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में ध्यान देना चाहिए. That's why I introduced my wife as a face of Balbar. Wow, that's actually मुझे पूछना था. मतलब मुझे खुद को पर्सनली ये डाउट था कि मैं प्रोटीन पाउडर लूँगी, मेरे शोल्डर्स ब्रॉड हो जाएंगे, वो ऐसा फिजिक लगने लगेगा. तो क्या काम करता है प्रोटीन पाउडर फॉर फीमेल्स? So not just for females, males and females में प्रोटीन सिमिलरली काम करता है. एक ह्यूमन बॉडी को अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट 0.8 ग्राम्स पर केजी 0.8 ग्राम्स पर केजी प्रोटीन चाहिए. दैट इज इक्वल टू, इफ माय वेट इज 80, देन माय बॉडी रिक्वायरमेंट टू फंक्शन इज 65 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. सो अगर मैं इतना बीइंग अ वेजिटेरियन, तो एक वेजिटेरियन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन. अगर वो प्रोटीन रिच डाइट भी खाता है, जैसे अगर वो पनीर भी ले लो, वो प्रोटीन रिच डाइट है, बट
प्रोटीन इज नॉट द ओनली सोर्स ही इज गेटिंग फ्रॉम दैट पनीर. उसको कार्ब्स भी उससे ज़्यादा मिलते हैं. इसलिए प्रोटीन पाउडर्स और प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर नेसेसरी फॉर वेजिटेरियंस मोर देन नॉन वेजिटेरियन पीपल. सो अगर आज जैसे आप बोल रहे हो कि आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट करेगा, योर वेट इज अराउंड 50 और 50 आई एज्यूम, नॉट श्योर. You are close. Yes. So you will be needing 40 grams of protein per day just to maintain your body. इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मस्कुलर बॉडी हो जाएगा या कुछ नहीं होगा. आपकी जैसी बॉडी उसको मेंटेन करने के लिए आपको 40 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए. अगर आपकी फिजिक और इम्प्रूव करनी है तो यू कैन टेक 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 1 ग्राम पर बॉडी वेट. दैट इज यू विल गेट अ गुड डेफिनेशन ऑफ योर बॉडी. बट ऐसा नहीं कि एकदम मस्कुलर हो जाओगे जो आप कॉम्पिटिशंस में देखते हो. और वो लोग प्रैप करते हैं, वो लोग उसके लिए प्रैप करते हैं, वो उसके हिसाब से डाइट करते हैं टू गेट दैट मस्कुलर बॉडी. प्रोटीन से मस्कुलर बॉडी नहीं आता. प्रोटीन इज अ सोर्स, एक अमीनो एसिड्स है विच ब्रेक डाउन इनटू योर ब्लड स्ट्रीम एंड वो आपको एक एनर्जी देता है. बस दैट्स ओनली प्रोटीन डूइंग इन योर बॉडी. बट आप सर रिसर्च से ये सब सीखा है कि डिड यू आल्सो स्टडी? सो इनिशियली मैंने रिसर्च किया, फिर उसके बाद आई थॉट आई शुड go deep in this. Then now I am a certified nutritionist. So I studied for this. I did a diploma course and I learned around this part कि न्यूट्रिशन कैसे काम करता है बॉडी में, डिफरेंट सप्लीमेंट्स, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स कैसे किस तरह से रिएक्ट करते हैं. So I studied about that thing. But still I am learning more and more about this thing. So अभी भी कह सकते हैं कि और जितना इसके बारे में जानोगे वो कम है. बिकॉज ये ऐसा एक सेक्टर है ना, यहाँ पे आप रिसर्च जितना करोगे ना उतना न्यू प्रोडक्ट्स निकाल पाओगे. इट्स नॉट दैट कि आपने एक प्रोडक्ट निकाल दिया वो आपका लाइफ टाइम प्रोडक्ट रहेगा. बस प्रोटीन के अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, वे कॉन्सेंट्रेट, वे आइसोलेट एंड वे हाइड्रोलाइज्ड. सो ये 3 टाइप के प्रोटीन है, उसके अंदर भी आपके वेरिएशंस बहुत होते हैं. सो कौन से अमीनो स्पाइक्स आप कर रहे हो, कौन से, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा कि कौन से अमीनो स्पाइक्स हो रहे हैं, कौन से क्या हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से प्रोटीन डेवलप होता है. Is it different for males and females? No. It's all the same. खाली जो quantity है depends on your weight. Quantity depends on your weight. So then, how did you go about developing your product? Challenges कुछ आए होंगे? हाँ, initially it was like कि मतलब मैं एक ब्रांड लेता था जो मैं पिछले 6 साल से वही ब्रांड ले रहा था, वही ब्रांड का प्रोटीन ले रहा था. तो my own body was getting मतलब adjusted with that brand. सो मैंने बहुत सारे रिसर्च किए. वी डिड मोर देन 99 सैम्पल्स बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट. मोर देन 99. ऑल द 99 सैम्पल्स वर टेस्टेड बाय मी. सो सारे प्रोडक्ट मेरे पेट के अंदर ही गए. सो कहीं पे मेरे को ब्लोटिंग ज़्यादा हुआ, कहीं पे क्या हुआ. तो इनिशियली आई वाज फेसिंग दिस चैलेंज कि यार मैं परफेक्ट प्रोडक्ट बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे. देन एक सडन से क्लिक आया कि अगर मैं तो अभी एक नया बंदा हूँ जो प्रोडक्ट बना रहा है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस फील्ड. सो आई चैनल्ड एक न्यूट्रिशनल पैनल, पूरा एक 5 लोगों का न्यूट्रिशनल पैनल बनाया. हम लोगों ने उनकी हेल्प ली कि कौन से इंग्रेडिएंट कैसे डालने की, किस क्वांटिटी में हमें डालना चाहिए, किस वेरिएशंस में हमें डालना चाहिए, और कौन से टाइप ऑफ प्रोटीन डालना चाहिए. उसकी वजह से हमने ना बहुत सारे सैम्पल्स निकाले और फिर देन वी डेवलप दिस फॉर्मूला ऑफ वे प्रोटीन आइसोलेट विच इज़ वेरी लाइट फॉर योर स्टमक. बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि एक बंदे के अंदर वे प्रोटीन जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करता इफ इट्स कॉन्सेंट्रेट. बिकॉज इंडिया में 60 से 70% ऑफ पीपल आर लैक्टोज इंटॉलरेंट एंड उनको पता भी नहीं है. वे कॉन्सेंट्रेट में लैक्टोज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और जैसे ही उसको और फिल्टर करते हैं तो वे आइसोलेट बन जाता है जिसके अंदर लैक्टोज ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विद दिस वे आइसोलेट फॉर्मुलेशन, जिसकी वजह से लोगों को एकदम लाइट भी फील होगा और उनके स्टमक पे कुछ इशू भी नहीं होगा. सो इस तरह से हम लोगों ने पूरा पैनल बनाकर लोगों से एडवाइस लेकर आफ्टर दैट पैनल हम लोगों ने एक सैम्पल रन भी किया था ऑफ 100 पीपल. हम लोगों ने मतलब इनिशियली हमारे इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया था कि आई एम स्टार्टिंग दिस ब्रांड इन 30 days. तो आई हैव गैदर्ड अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु वर फॉलोइंग मी फ्रॉम डे 0. तो तब से मेरे को लोग वो कम्युनिटी वाले लोग इतने जानते हैं कि हाँ समथिंग इज कमिंग इन दिस सप्लीमेंट इंडस्ट्री. तो मैंने बीच में क्या किया, आई जस्ट पोल्ड आउट कि हम 100 लोगों के सैम्पल्स लेने वाले, मतलब सैम्पल्स शेयर करने वाले.
गिव मी योर फीडबैक. तो वी गॉट मोर देन 400 रिप्लाईज फॉर दैट एंड वी थॉट कि हम इसमें से नहीं कर सकते. वी सिलेक्टेड ओनली 100 पीपल. वी सेंड देम दैट सैम्पल्स. हम लोगों ने उनका पूरा रिसर्च लिया, उनके डेटाज लिए कि उन लोगों को क्या फील हो रहा है, कैसे फील हो रहा है, कौन से टाइम पे क्या हो रहा है. देन वी इवेल्युएटेड विद द प्रोडक्ट एंड केम अप विद दिस प्रोडक्ट इन दिस ऑगस्ट 2024. लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस आपने Yes. स्टार्ट किया, उसके पहले टू मच ऑफ इनपुट. ग्रेट. बट आप प्रॉपर बैलेंस डाइट कंज्यूम कर रहे हो, एवरीथिंग इंक्लूसिव. आप जो बोल रहे हो वो मेजरमेंट्स भी फिट हो रहे हैं, तो भी प्रोटीन पाउडर का नीड है. To be honest, if you are a vegetarian, you cannot achieve balanced diet. You can never achieve it because what is balanced diet at the end? Exact amount of protein, exact amount of carbs, exact amount of fiber and exact amount of fats. So सब एकदम equal amount पे होना चाहिए. But Indian diet में कैसा है? Indian vegetarian diets में कैसा है? It's a carb rich diet. It's a carb rich, not a protein rich. And carb is a third essential part of the this body development program. सबसे first is protein, second is fat. You won't believe it, it's fat. Because लोग बोलते हैं फैट बर्न करना है, फैट कटना है. फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर. मत खाओ, घी मत. नहीं, घी इज वेरी इंपॉर्टेंट यार. इफ एनीवन सेज कि घी मत खाओ, मैं बोलूँ घी तो खाना ही चाहिए बिकॉज दैट्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ फैट विच यू आर गेटिंग इन योर बॉडी. मतलब दो टाइप के फैट होते हैं, गुड फैट एंड बैड फैट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. हैव अ सैचुरेटेड फैट that will help you to grow your body. So what we are doing, balanced diet. So Indian, अब जैसे अब if you talk about rice दाल, what do you think? एक दाल में कितना ग्राम प्रोटीन होगा? क्या? एक कटोरी दाल में only 2 grams of protein. That's nothing. Nothing. आपके बॉडी, आप पूरा दिन उसको अगर कैलकुलेट भी करोगे ना, a vegetarian Indian person is eating around 40 grams of protein from the diet. Entire day, only 40 grams एवरेज बता रहा हूँ. और एंड दैट इज स्टैटिस्टिकली प्रूवन कि आप 40 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन खा नहीं पाते हो. बिकॉज आप पनीर खाओगे, आप पनीर खा रहे हो, समझो 100 ग्राम पनीर भी खा लिया, यू विल गेट 12 grams ऑफ प्रोटीन इन दैट. बट एट द सेम टाइम यू विल गेट 25 grams ऑफ कार्ब्स, जो आपके बैलेंस को इम्बैलेंस कर रहा है एट द एंड. सो दिस इज वाई एक वेजिटेरियन के लिए बैलेंस डाइट इज नॉट अ गुड टर्म टू यूज. तो इट्स अ मस्ट. और एक बार स्टार्ट करने के पहले इज इट कंपल्सरी कि अब ये लाइफ टाइम कंटिन्यू करना पड़ेगा? No. मतलब इट्स गुड यू हैव योर प्रोटीन एवरी डे, बट इसकी एडिक्शन नहीं है. इसका एडिक्शन नहीं है और इसका नेसेसिटी इज लाइक, आज अगर आप दिन में इफ यू स्टार्ट विद ओनली 1 scoop ऑफ प्रोटीन, दैट विल गिव यू ओनली 25 grams ऑफ प्रोटीन. और जो आप 40 + 25 और ऐड कर रहे हो, दैट इज रिक्वायरिंग योर डेली बजट. बस और कुछ नहीं करना है. ऐसा नहीं है कि इसको तुमको कंटिन्यू पूरा टाइम करना पड़ेगा. आज जैसे हफ्ते में मैं खुद 7 दिन प्रोटीन नहीं पीता हूँ, कभी कभी मिस हो जाता है, इट्स ओके. बट ऐसा नेसेसिटी नहीं है कि आपने आज प्रोटीन नहीं खाया तो आपका बॉडी डाउन हो जाएगा या आपका बॉडी को कुछ एडवर्स इफेक्ट होगा. ऐसा कुछ भी नहीं होता. बिकॉज व्हाट इज प्रोटीन? I'll just ask you one thing. What is whey protein? Whey protein. I have no idea. I thought it's only used by people who go to the gym. वो muscles बनाने के लिए whey protein लेते हैं. That is all I know about protein. That's the myth in the India right now. So ये whey protein क्या होता है? एक दूध को जब अपन फाड़ते हैं पनीर बनाने के लिए, Yes. वो पनीर बनाने से पहले जो पानी है वो जो स्प्लिट होता है, that's whey. That's whey. उसको डिहाइड्रोलाइज करते हैं. उसका फिर जितना हाइड्रेशन होता है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके दैट्स कॉन्सेंट्रेट, और उसको और फिल्टर करेंगे तो आइसोलेट, और उसको और फिल्टर करेंगे तो हाइड्रोलाइज. बस ये वे वही है. इट्स सिंपल. मतलब तुम दूध ही पी रहे हो एट द एंड. यू आर ड्रिंकिंग मिल्क आउट ऑफ, बट एक प्योरिफाइड मिल्क होता है जो लैक्टोज फ्री होता है. बस इतना डिफरेंस है वे और दूध में. That is great. Yeah, so much information. Tell me, बहुत सारे brands of protein powders are available in the market. Yes. Name it and it's there in the market. Yes. What sets your product apart? So from start till end, I'll say only one thing: the quality sets us apart. Because हम लोगों ने quality में zero compromise किया है in terms of choosing the ingredient, choosing the suppliers of the ingredient. हमारा whey isolate जो आता है that comes from New Zealand. मतलब it's a best source you can get whey from. So we get our whey from New Zealand. हमने जो ingredients use किए, हम
even there is one more USP that whenever anyone orders from our website or Amazon or Flipkart, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको एक लैब रिपोर्ट साथ में देते हैं. वी चैलेंज देम, यू डू द रिपोर्ट्स. अगर आपको कोई भी वेरिएशन दिख रहा है, एक साल का आप जो ब्रांड का बोलोगे वो ब्रांड का सब्सक्रिप्शन हम आपको प्रोवाइड करेंगे. सो दिस गारंटी हम इतनी गारंटी के साथ बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट एकदम क्वालिटी में टॉप नॉच है. Because ये कॉन्फिडेंस आया है because of the Research, trial on your own self. एग्जैक्टली बिकॉज अभी तक हम लोगों ने ये अगस्त से लेके अभी तक हम लोगों ने बहुत मोर देन 500 लोगों को सबमिट प्रोडक्ट दे चुके हैं. वी डिडंट इवन गॉट अ सिंगल कंप्लेंट, और एक भी ऐसा नहीं आया जहाँ पे उन लोगों को स्टमक में इशू हो रहा है या कुछ भी हो रहा है. तो दैट गिव्स अस मोर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर प्रोडक्ट. But what about जो sweeteners और artificial flavors वगैरह to make it tastier? आप भी ऐसा कुछ कर रहे हो? So हमारा शुगर जीरो है. We had no sugars. We use sucrose instead of sugar. Flavors में we use flavors, definitely artificial flavors use करना पड़ता है, because natural flavors में क्या है कि you don't get that effect on that part of taste, on the taste sector. But जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर भी हम लोगों ने बहुत से रिसर्च किया है कि कौन से टाइप के आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हमको यूज़ करने चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम लोग ने कोई भी फ्लेवर्स को रैंडमली चूज़ करके हम लोगों ने वो फ्लेवर पैलेट बना दिया. बिफोर सिलेक्टिंग अ आर्टिफिशियल फ्लेवर वी डू अ टेस्ट ऑन दैट फ्लेवर पार्ट ऑल्सो, कि ये कितना बॉडी के लिए वो है. दैट्स वाई वी कैन सिलेक्ट स्पेसिफिक फ्लेवर पैलेट्स ओनली, कि उसके अलावा जैसे दूसरे पैलेट्स होते हैं जिसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं, तो हम लोग वो पैलेट यूज़ ही नहीं करते. सो इनिशियली हमको भी थोड़ा आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज़ करने पड़ते हैं, बिकॉज इंडियन मार्केट कैसा है, जब तक उनको फ्लेवर टेस्ट नहीं होगा तब तक उनको दे वोंट लाइक द प्रोडक्ट. बिकॉज एट द एंड अगर एक्चुअल में वे प्रोटीन अगर किसी को लेना हो ना, उसको नॉन फ्लेवर नॉन शुक्रोज के बिना शुक्रोज भी उनको लेना चाहिए, बिकॉज वो एक परफेक्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है. बट आज किसी को भी बॉर्नवीटा बोलोगे वो पी लेगा, बट प्लेन मिल्क बोलोगे वो नहीं पिएगा. सो वी नीड टू ऐड फ्लेवर्स इन दैट आल्सो, बट एज मिनिमम एज पॉसिबल, बिकॉज हम लोग धीरे धीरे इसको हो सके उतना कम करके वी आर गोइंग टू द नेचुरल पार्ट ऑफ द प्रोसेस. ओके, बट अभी दिस इज नॉट योर फैमिली बिजनेस, तो फैमिली की साइड से कुछ ऐसा रेजिस्टेंस या ऐसा कि क्यों ये इसमें जा रहे हो, घर का बिजनेस संभालो? नहीं, बिकॉज आई सेड ना, मेरा एक और स्टार्टअप था इसके पहले, मेंस लैब करके. सो वहाँ पे दे सीन माई कैपेबिलिटी कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ. तो तब से ऐसा था कि माई डैड सपोर्टेड मी ऑन एंटायर माई जर्नी, लाइक पूरा जीरो से लेके अभी तक वो मेरे को ऐसा सपोर्ट कर रहा है जैसे कि तू कर, खड़ा हूँ पीछे, तू कर. सो दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ माई फैमिली दैट सपोर्टेड मी throughout my journey. So you're only into this family business? No, only into this. Great, 100% dedication. Sir. Yes. But ये plant based और organic protein powders जो आते हैं, do they give the same quality and quantity of protein as the non-organic ones? No. So plant based protein में same वही फंडा होगा. जैसे हमारा जो प्रोटीन होता है वे आइसोलेट में वे होता है, उसमें आपको 33 ग्राम्स में 25 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाता है. बट प्लांट में आपको यही 25 ग्राम्स के लिए आपको 50 ग्राम्स का स्कूप लेना पड़ेगा. दैट बिकम्स मोर हैवी टू योर बॉडी. सो ये एक डिफरेंस है प्लांट बेस्ड और वे बेस्ड में, क्योंकि वे एक क्लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है. प्लांट बेस्ड इज ऑल्सो क्लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट उसमें आपको क्वांटिटी ऑफ पाउडर ज़्यादा हो जाता है. Okay, and that the stomach cannot take. Yes. So what you are making is organic? Oh, it's whey based protein. So whey isolate. Okay, so is it organic to 100%? Yes, it's made from milk. It's made from milk. It's milk in the end. But what is the most memorable part or the most memorable moment in your journey so far? It gave me, like, if I give a thought, within 1 hour when I started the brand, it was August 14, I started this brand. Within 1 hour, it was sold out. Wow! Within an hour? Within an hour, all products were sold out. क्या जादू किया था उसके पहले? हम पता नहीं, हम लोग मतलब मैंने वो जर्नी जो दिखाई ना 30 डेज की है, मतलब वो 30 डेज से ज़्यादा ही लग गई. बट वो जर्नी जो दिखाई ना उसमें लोग इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम लोग को इवन आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दैट.
मैं रेडी भी नहीं था उसके लिए। हम लोग को शिफ्ट करने में 1 हफ्ता लग गया, इतने सारे प्रोडक्ट्स, तो हम खुद रेडी नहीं थे। तो 1 घंटे हम लोगों ने पूरा प्रोडक्ट सोल्ड आउट किया। वो इट वॉज अ वेरी गेम चेंजिंग फॉर मी यार, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। अलग लेवल का वो मोटिवेशन आ जाता है, दैट फायर इज देयर। यस, फिर उसके बाद से इट्स लाइक एवरी 7 days आई नीड टू मेक अ न्यू प्रोडक्शन बैच। सो ऐसा लव एंड सपोर्ट मिलता है तो और मजा आता है टू ग्रो दिस ब्रांड, मेक इट बिग। बिकॉज अभी हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं, सिर्फ अहमदाबाद मुंबई में फोकस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पूरा इंडिया टैप भी नहीं किया। तो जैसे ही हम लोग वो पूरा इंडिया टैप करेंगे तो वी नो दैट हमने जो यहाँ पे किया है वो का वही रेप्लिकेट ही करना है। सो दैट गिव्स मी मोर। yes, we are getting ready for it right now. But tell me, I've heard kidney damage, hair loss, back issues, other health issues. Is protein causing all of this? Not at all. Not at all. Kidney, hair, back, everything is caused by your personal diet. Like आप क्या खा रहे हो? आज आप बोल रहे हो कि मैं प्रोटीन पी रहा हूँ, if I'm drinking protein, but I'm working out. But मैं जाके रात को बैठ के 12 बजे कुछ खा रहा हूँ, मुझे भूख लग गई, मैंने कुछ मंचूरियन ऑर्डर कर लिया, मैंने कुछ मैकडोनल्ड्स का बर्गर ऑर्डर कर लिया। तो एट द एंड वो चीज़ आप एक रूटीन फॉलो नहीं करोगे तो आपको प्रोटीन पियो ना पियो होने ही वाली है। आप आज बोल रहा हूँ, एट द एंड वो आप ब्लेम डाल देते हो कि मैं उस पर तो ब्लेम नहीं डाल सकता, बट ये एक हेल्दी चीज़ करने के बाद भी मुझे ये हुआ तो मैं इस पर ब्लेम डाल देता हूँ। तो ये एक दिमाग में लोगों के पर्सपेक्टिव बन जाता है कि हम इतना हेल्दी कर रहा हूँ फिर भी ये हो रहा है, बट साथ में तुम क्या अनहेल्दी कर रहे हो, तुम उसको भी तो देखो। जैसे किडनी का आप बोल रहे हो कि आज किडनी डैमेज, मतलब लोगों की किडनी डैमेज क्यों होती है, रीज़न इन लोग का सबसे पहला है इरेगुलर डाइट। आज बेस्ट पार्ट इन जेन व्हाट आई फेल, इसमें एक चीज़ क्या होता है, रात को नहीं खाना। दैट्स रियली गुड पार्ट ऑफ द जेन, कि वो आपको एक धर्म के हिसाब से आपको बता दिया, बट एक्चुअली क्या पता है, साइंटिफिकली इट्स प्रूवन कि 7 बजे के बाद नहीं खाओगे ना तो आपका गट, आपका स्टमक वुड बी एकदम क्लीन, आपको नेक्स्ट डे इतना फ्रेश फील होगा ना कि आपको हैवी भी फील नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट्स सेट अप अपने, मतलब मेरे को आज कभी कभी मैं डिस्कस करता हूँ मेरे एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कि हम लोग में ऐसा है, हम लोग में ऐसा है। मतलब ये तुम लोग में क्या होता है, तुम लोग पहले ना साइंस की बात नहीं मानते थे, इसलिए धर्म के नाम पे डाल के तुम लोग को ये दिया है। बिकॉज अब कुछ भी देखो, इवन मैं खुद खाता हूँ आलू और कांदे दोनों खाता हूँ, बट आई बिलीव कि कांदे और आलू की वजह से आपकी बॉडी में एग्रेशन बढ़ जाता है, बिकॉज दैट्स वेरी क्या बोलते हैं, तामसिक बोलते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ जैन टर्म्स तामसिक बोलते हैं, और वो मैंने नोटिस भी किया हुआ है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जेन में बहुत अच्छी है, और जो एक्चुअली एक न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बनाई लगता है जेन पूरा, कि जेन का ये कि रात को नहीं खाना, रात ये नहीं करना, आलू नहीं खाना, कांदे नहीं खाना। सो दैट्स रियली गुड ऑफ इट। सो अगर ये चीज़ आप फॉलो करोगे ना इन टर्म्स ऑफ योर डेली रूटीन, आई एम डैम श्योर आपको ना किडनी का डैमेज होगा, ना हेयर फॉल होगा, ना कुछ भी होगा। बिकॉज आप देख लो कितने लोगों ने रात की सौगंध ली हुई है, बहुत सारे लोगों ने ली हुई है, और उनका देखो कभी किडनी का प्रॉब्लम हुआ है, कभी नहीं हुआ। Because they are fit. They are more fit than us. Fresh होके ये they just get to work. Exactly. And we feel very lazy खाने पीने के बाद भी. Exactly. क्योंकि वो जैसे ही आपका 9 o'clock के बाद आप खाते हो ना, इधर तो 7 o'clock बोला, बट 9 o'clock के बाद जैसे ही आप कुछ भी खाते हो तो इट विल टेक 8 hours टू जस्ट डाइजेस्ट इट, और उसके बाद भी यू हैव टू 4 hours मोर टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग इन योर बॉडी। तो उसकी वजह से आपको वो प्रॉब्लम आ जाता है कि बिकॉज रात को बॉडी क्या क्या करेगा, जब रात को बॉडी सोता है तो सबसे ज़्यादा काम करता है, जिसके अंदर उसको डाइजेशन भी करना है, उसको पूरे दिन की जो मेमोरीज है उसको सॉर्ट भी करना है कि ब्रेन में ये मेमोरी इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। हार्ट रेट सबसे ज़्यादा काम करता है रात को, तो बहुत सारे काम है उसके अंदर। एक और आप डाइजेशन डाल देते हो तो कहीं ना कहीं तो यस यू आर डैमेजिंग समथिंग। But it's great, आप जैन फिलोसफी एंड साइंस ये सब मिक्स करके आप एक अच्छा आउटकम ला रहे हो, सो इट्स कमेंडेबल। यस, इवन मैंने मतलब अभी मैं खुद ऐसा मतलब हो चुका हूँ कि मैं हो सके उतना 7:30 के बाद खाना नहीं खाता हूँ। सो ऑफिस से आने के बाद 6 बजे 6:30 वो ऑफिस, मतलब 5 o'clock से मैं ऑफिस से निकल जाता हूँ, जिम जाता हूँ, जिम से 6:30 आता हूँ, 7 o'clock को भूख लगी जाती है।
खत्म 7 o'clock भूख लग गई, 7:30 बजे तक खाया, खत्म। उसके बाद से आई इवन फेल्ट कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है कि 7 बजे खाने के बाद तुमको ऐसा होता है कि हाँ ठीक है यार, अभी मस्त आराम से मैं सो सकता हूँ, कोई गिल्ट नहीं कि ये आप 7 बजे पहले कुछ भी खाओ ना, मैं कुछ भी खाओ, मिठाई खाओ, शुगर खाओ। लोग बोलते हैं शुगर बहुत वो है, शुगर खाओ, मिठाई खाओ, मैं खुद खाता हूँ। मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है मैं नहीं छोड़ सकता उसको। Everyone's guilty pleasure sweet. यस, तो मैं खाता हूँ, फिर भी मुझे ऐसा फील नहीं होता कि यार मेरी बॉडी में कुछ है। सो दैट्स रियली गुड ऑफ इट। वो मैकेनिज्म अपने आप हो जाता है बिकॉज वो गैप मिल जाता है, आपके बॉडी को डाइजेशन के लिए टाइम मिल जाता है, तो तुम कुछ भी खाओ, बॉडी डाइजेस्ट कर लेगा। ग्रेट। ये प्रोटीन पाउडर इज इफेक्टिव ओनली व्हेन यू वर्क आउट? बहुत वर्कआउट करना पड़ता है कि नहीं। ऐसे ही लो? You can take it every day even if you are not working out. As I said, 0.8 grams per kg you need to have protein in your body. So you can take it anyways. Hiren, I have a question. When my brother was taking protein, my mother, मैं सब पीछे पड़ी थी कि ये डब्बे निकाल घर से, क्या कर रहा है, क्यों ले रहा है ये सब, कैसे, मतलब क्या उनका ओपिनियन कैसे चेंज करे? ओपिनियन एक सिंपल तरीके से चेंज कर सकते हैं कि आज वो डब्बा अगर वो खा रहा है, 1 महीने से खा रहा है, क्या प्रॉब्लम है आप मेरे को वो बताओ ना पहले। आप एक बार मुझे वो बताओ क्या प्रॉब्लम है। उनका एक ही है, अभी कुछ नहीं दिखेगा, लॉन्ग टर्म में तेरे को पता चलेगा, तेरे बाल झड़ जाएंगे, तेरा बैक कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। मतलब बाल तो सबके झड़ रहे हैं, अभी तो सबके झड़ रहे हैं। टेंशन इतना लोगों के दिमाग में है कि आज अब मैं प्रोटीन नहीं भी खाऊंगा ना, आज एक पर्सन की लाइफ में इतना टेंशन है। बाल झड़ने का सबसे बड़ा रीजन इज टेंशन। आप स्ट्रेस इतना लेते हो, आपके ब्रेन सेल्स विल बी हाइपर एक्टिव कि हाँ ये करना, बाल झड़ने हैं। हर एक चीज का अपने को एक अराउंड द वे सोल्यूशन उनको बताना पड़ेगा। लाइक आज आप पूछ रहे हो कि मॉम को कैसे वो बताए, मॉम को सिर्फ इतना बताने का कि यार एक यही रीजन बाल झड़ने का और ये रीजन था ही नहीं बाल झड़ने का, दूसरे सारे रीजन है जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। और किडनी जैसे आप बोल रहे हो तो किडनी डैमेज नहीं होती है। वी नीड टू प्रोवाइड देम दैट साइंटिफिक रिजल्ट्स। वो साइंटिफिक तो समझेंगे नहीं, वी नीड टू प्रोवाइड देम विद थोड़ा किसी का एग्जाम्पल के लिए। आई कैन से फनी वे में बोल रहा हूँ ना, जब इसको जैसे अपने को धर्म के लैंग्वेज में ना रात को नहीं खाना सिखाया ना, वही धर्म के लैंग्वेज में इनको सिखाना पड़ेगा कि देखो ये महाराज साहब ने ऐसा बोला हुआ था, ये बोला हुआ, वी कैन डू some part of that game in this because तो ही mom dad will understand that way only. उनको अगर आप साइंटिफिक रिजल्ट्स बताओगे, साइंटिफिक बताओगे, नहीं मैं ये नहीं समझते unless and until someone big, someone elder than them have said them कि नहीं ये बरोबर है। अभी उसके लिए we have to educate that elders that हाँ प्रोटीन is necessary for you because आज से पहले लोगों को दिमाग में ये भी था प्रोटीन is not veg. लोगों के दिमाग में यह था कि यार प्रोटीन वेज ही नहीं है। मतलब प्रोटीन इज 100% वेज, वो मिल्क से बना हुआ है यार, उसके अंदर कुछ भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ मिल्क है। सो पहले वो मिथ अपने को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा कि प्रोटीन इज प्योर वेज और वो वेजिटेरियंस के लिए ही इन्वेंट हुआ था। ले रहे हैं सब बट इन्वेंट वेजिटेरियंस के लिए हुआ था। सो वी नीड टू एडुकेट पीपल, एडुकेट एल्डर्स बिफोर एडुकेटिंग मॉम्स। सब लोग, मम्मी लोग, पापा लोग, सिस्टर लोग, ब्रदर लोग, हर कोई प्रोटीन हो, इट्स बेनिफिशियल फॉर एवरीबॉडी। यस। आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? हाउ डू यू प्लान टू अपस्केल बल भारत? सो within a year I am planning to expand in all over India and मेरा एक सिंपल गोल है, 2 साल के अंदर I need to export my brand बल भारत to US and UK. The reason I kept the name बल भारत, हाँ, मैं I was coming to that. So it is कि आज कोई भी बॉडी सप्लीमेंट ब्रांड देख लो, उनके नेम कैसे होंगे? इट वुड बी रिगार्डिंग मसल, इट वुड बी रिगार्डिंग बॉडी, इट वुड बी रिगार्डिंग समथिंग। देयर इज नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ब्रांड। मेरा एंड गोल इज ओनली वन थिंग, इंडिया से ज़्यादा यूएस में लोग प्रोटीन लेते हैं। यूएस में अगर भारत नाम का प्रोटीन बिकेगा तो क्या गर्व फील होगा अपने लिए कि यार बल भारत करके ब्रांड उधर बिक रहा है और वो एकदम टॉप पे जा रहा है। सो दिस इज द विजन। मैंने ये नाम से भारत नाम सेट किया था। बट वेरी नाइस थिंकिंग। थैंक यू। चेन को भी आप कंसिडर कर रहे हो, इंडिया को भी कंसिडर कर रहे हो, एंड व्हाट योर लॉन्ग टर्म गोल इज, वी होप यू अचीव इट एज फास्ट एज पॉसिबल। I think we're done here. Thank you so much for your insightful opinions, and please everybody, men, women, everybody can take proteins. Just go for it. Go to Bal Bharat.
and get your boxes now. Thank you so much. Thank you, Adrian. Thank you so much.